బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత కేసులో అందరూ నిర్దోషులే అని తేల్చి చెప్పింది. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ లైవ్ లో అందిస్తారు. ప్రసాద్, సిబిఐ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం దీనికి సంబంధించి ముందుగా ఊహించినట్లుగానే వీరెవరూ కూడా కుట్రపూరితమైన నేరానికి పాల్పడలేదు. ఎవరు కరసేవకుల్ని ఈ నిందితులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఎవరు ప్రోత్సహించలేదు అన్న అంశాన్ని స్పష్టం చేయడం జరిగింది. దీంతో పథకం ప్రకారం ఈ బాబ్రీ మసీదు కానీ వివాదాస్పద కట్టడాన్ని కూల్చివేయలేదు. అలా కూల్చివేశారు అని అనటానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు అన్న అంశాన్ని సిబిఐ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం అంశాన్ని స్పష్టం చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా 2001లోనే సిబిఐ దీనికి సంబంధించినటువంటి చేయడం జరిగింది. లక్నో హైకోర్టు కూడా అంశాన్ని అంటే సమర్థించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 2017లో మాత్రం సుప్రీంకోర్టు ఇలాంటి కుట్ర కోణంలో వీరంతా కూడా ఉన్నట్టుగా ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వీటిని మరొకసారి పునరాలోచించాలి, పునర్విచారణ చేయాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో సిబిఐ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం దీనికి సంబంధించి మరొకసారి పునర్విచారణ జరిపింది. దాదాపు 2 సంవత్సరాల పాటు కుట్రకోణం ఏదైనా ఉందా, ఈ నేతలంతా కూడా ఈ కరసేవకులను రెచ్చగొట్టారా లేదా అన్న అంశాన్ని మరొకసారి పునర్విచారించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ రోజు ఇచ్చినటువంటి తీర్పులో ఇదే అంశాన్ని సిబిఐ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ధృవీకరించింది. ఆ మేరకు వీరంతా కూడా ఈ కేసు నుంచి పూర్తిగా వారికి మినహాయింపు లభించినట్టుగా ఉంది. ఆ మేరకు ఈ కుట్ర కోణంలో వారు ఎలాంటి కుట్రకు పాల్పడలేదు అన్న అంశాన్ని రూఢి చేయడంతో సిబిఐ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ఇచ్చినటువంటి తీర్పుతో నిందితులంతా కూడా ఒక్కసారిగా ఊపిరి పీల్చుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. ఉద్రిక్తమైనటువంటి వాతావరణంలో కరసేవకులంతా కూడా యథేచ్ఛగా విజృంభించి ఆ వివాదాస్పద కట్టడాన్ని, ఆ బాబ్రీ మసీదు కట్టడాన్ని కూల్చివేయడం జరిగింది. కానీ వీరెవరూ కూడా వారిని పురికొల్పలేదు, ఆ మేరకు ప్రోత్సహించలేదు, ఆ రకంగా రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు కూడా ఏమీ చేయలేదు అన్న అంశాన్ని సిబిఐ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ఈరోజు నిర్ధారించడంతో ఇచ్చినటువంటి తీర్పుతో వీరికి ఉపశమనం లభించినట్టుగా అయింది. రైట్ ప్రసాద్.
బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత కేసును కొట్టివేసింది సిబిఐ ప్రత్యేక కోర్టు. ఈ కేసులో నిందితులందరినీ నిర్దోషులుగా ప్రకటించింది. పథకం ప్రకారం బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత జరగలేదని చెప్పారు. ఇందుకు సాక్ష్యాలు లేవని వెల్లడించారు. బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత కేసును కొట్టివేసింది సిబిఐ ప్రత్యేక కోర్టు. ఈ కేసులో నిందితులందరినీ నిర్దోషులుగా ప్రకటించింది. పథకం ప్రకారం బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత జరగలేదని చెప్పారు. ఇందుకు సాక్ష్యాలు లేవని వెల్లడించారు. బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత కేసును కొట్టివేసింది సిబిఐ ప్రత్యేక కోర్టు. ఈ కేసులో నిందితులందరినీ నిర్దోషులుగా ప్రకటించింది. పథకం ప్రకారం బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత జరగలేదని చెప్పారు. ఇందుకు సాక్ష్యాలు లేవని వెల్లడించారు. दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय है। आ जाइए स्पीकर पे बोलना। आज अयोध्या प्रकरण विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए विश्व हिंदू को 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने कुछ लोगों ने अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। हाँ, फोटोग्राफ्स के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्श के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें कहीं न कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया। धन्यवाद। कोई सवाल हो आप पूछ लीजिए। बाकी लोग पीछे हट जाइए, बाकी और लोगों को आने दीजिए। इनको लोगों को आप लोग थोड़ा साइड हटिए। आप लोग थोड़ा साइड हटिए। कोई सवाल हो आप पूछे ना, बता दें। अरे माइक रखिए, माइक आवाज आ रही है। अरे माइक जी बताएं। हाँ बताइए, आ जाइए आगे आ जाइए। न्यायालय ने ये माना है कि साक्ष्य नहीं इनके खिलाफ मिले हैं किसी अभियुक्त के। माननीय अडवाणी जी, माननीय जोशी जी, उमा भारती जी और सारे 32 अभियुक्त कॉन्स्पिरेसी इन लोगों के खिलाफ प्रूफ नहीं होती है। जो ढांचा गिरा वो कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा गिरा, क्योंकि ढांचा के नीचे मंदिर था और उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए ढांचा गिराने में या ढांचा गिराने के षड्यंत्र में किसी तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जो बहस हम लोगों की तरफ से तर्क दिए गए थे, जो तर्क हम लोगों की तरफ से बचाव पक्ष की तरफ से रखे गए थे, सभी तर्कों को साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का अवलोकन और परिशीलन करने के बाद
सम्यक विश्लेषण करने के उपरांत न्यायालय ने पाया, माननीय न्यायालय ने ये उद्घोषित किया कि सभी तर्क सही पाए गए हैं और सभी आरोपित व्यक्तियों को दोष मुक्त किया जाता है। कोई भी साक्ष्य आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। सभी आरोपी बरी कर दिए गए, छोड़ दिए गए। तो सीबीआई की जांच में क्या निकल के सामने आज इस पे फैसला लिया गया? जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए सीबीआई द्वारा, उनमें से अधिकांशतः जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशंस रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कारसेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कारसेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से आरोप गलत पाए गए और सभी आरोपित को दोष मुक्त किया गया। साजिश के विषय में यह स्पष्ट कर दिया है न्यायालय ने कि रामलला की मूर्तियां वहीं रखी हुई थी तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह में, और यदि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र आरोपित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया होता तो निश्चित रूप से रामलला की उन मूर्तियों को पूर्व में ही हटा लिया गया होता और वो मूर्तियां अचानक, ये सीबीआई का साक्षी कहता है, वो जो पुजारी हैं वो स्वयं कहते हैं कि हमने अचानक जब तीसरा गुंबद गिरने लगा तो रामलला की उन मूर्तियों को बचा लिया। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि पहले से कोई योजना नहीं थी और जो लोग तीसरे गुंबद को गिरा रहे थे वो दो कारणों से गिरा सकते हैं। या तो उनको रामलला पे कोई आस्था नहीं थी और या उनको अनुमान नहीं था कि ये तीसरे गुंबद के नीचे, गर्भगृह के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान है। ये कौन हो सकता है? ये कौन तत्व हो सकते हैं? न्यायालय ने यह भी उद्घाटित किया कि एलआईयू की रिपोर्ट पूर्व से थी कि 1 दिसंबर से ही वहां पे कुछ उपद्रव होने की, अशांति पैदा करने की संभावनाएं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो एलआईयू की रिपोर्ट, आईजी ए.के. सरन का स्टेटमेंट वो ये बताता है कि आईबी और ये एलआईयू इस प्रकार की रिपोर्ट थी। कोई भी अराजक तत्व वहां पे कार सेवकों के भेष में कोई भी घटना कारित कर सकता है। तो ये साबित नहीं हो सका कि जो कुछ मुट्ठीबंद लोग ढांचे को ध्वंस करने के लिए आगे आए उनका किसी प्रकार से संगठन, विश्व हिंदू परिषद या किसी नेता से या किसी आरोपी से, किसी साधु संत से किसी प्रकार का कोई संबंध पूर्व से था। इस प्रकार का कोई रथ यात्रा के बारे में कुछ कहा? और आगे लाओ आइडिया लाओ। रथ यात्रा के बारे में नहीं, ये विषय रथ यात्रा का नहीं था। ये आरोप था विवादित ढांचे को गिराने के लिए उकसाने की। आरोप के दृष्टि से आरोप साबित नहीं है। पूरा आरोप से मुक्त कर दिया गया। मुक्त कर दिया गया। सर, सीबीआई जो है प्रमुख जो है जांच एजेंसी है भारत की, क्या इनको ये समझ में नहीं आया कि हम जो है साक्ष्य जो रख रहे हैं? सीबीआई साक्ष्य नहीं रखती है, सीबीआई साक्षी रखती है। साक्षी रखता है। सीबीआई की जिम्मेदारी सिर्फ साक्षी लाने की है। साक्ष्य लाना साक्षी का काम है न्यायालय में। साक्षी जो कहेगा वो स्वतंत्र है। दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई
कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई। और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया आज की तारीख में। जी 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 आ जाइए जी स्पीकर पे बोल आज अयोध्या प्रकरण, विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత కేసులో అంతా నిర్దోషులేనని తీర్పు ఇచ్చింది లక్నో సిబిఐ